Hello, how are you? Hope you all are fine. So now let's continue. Let us continue the lesson 100 dresses. See, यहाँ तक हमने क्या देखा कि there are three characters, Wanda, Maddie and Peggy. All are different, but they all are kids. Okay, so Wanda Pentronsky ने what she has done. हाँ? यहाँ पर ये है कि वांडा Now, Vanda ke bare mein now we all very well know. She is a poor girl, but she is bold and confident. She's a poor Polish girl. She wears blue dress, which is clean but not ironed properly. Her name is a non-familiar one. We can't say it a funny one. It was funny for the others one, but for her, her name is unfamiliar, right? Now the next one is now what she has done. She लोग उस जो क्लास स्कूल के बच्चे हैं उसको टीज करते हैं और उससे क्वेश्चंस पूछते हैं हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मेनी शूज यू हैव, एंड एवरी टाइम वो क्या करती है, शी गिव्स एन आंसर. एवरी टाइम शी गिव्स एन आंसर. आई हैव 100 ड्रेसेस, ऑल आर lined up in my closet. Okay, इस तरह से. Now the next girl is, हाँ, now what very important thing in her character is she never cried. कभी वो रोई नहीं है, right? Now next character हमारा आता है Peggy. Now who is Peggy? Now Peggy is the most popular girl of this school. ठीक है, वो पॉपुलर भी है. शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. वी कैन से शी इज ऑल राउंडर गर्ल ऑफ द क्लास. ठीक है, सो रूम नंबर 13 से वहां पर रूम नंबर के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं. तो इन रूम नंबर 13 पेगी इज द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर गर्ल विद ऑल द क्वालिटीज शी हैज. ओके, सारी क्वालिटी उसके पास है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द मेडी. नाउ अब मेडी के बारे में क्या कहना है? व्हाट इज शी? शी इज शी इज अ पुअर गर्ल, but she wears old dresses, very cleverly trimmed by her mother. So she is not as rich as Peggy, but she is not as poor as Wanda. You can say that. Okay. Now, Maddie can realize the mistake they had done. क्या mistake करी थी? They used to tease Wanda. They can't say tease, but they used to ask various questions. Um, questions. Okay, they used to put the questions in front of Wanda about her dresses and shoes. Right. So let us continue. कि वांडा ने कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया. वांडा शी वन द कॉन्टेस्ट, लेकिन नाउ शी इज नॉट कमिंग टू दी इज नॉट कमिंग टू द स्कूल. और उसकी जगह में वांडा के फादर ने लेटर भेजा है वेयर ही कन्फेस्ड दैट वांडा एंड हर ब्रदर जैक विल नॉट कम टू स्कूल नाउ. ठीक है, नो मोर दे विल नॉट कम टू स्कूल एंड दे आर मूविंग टू अ बिग सिटी वेयर देयर विल बी लॉट्स ऑफ फनी नेम्स. So no need to worry about the unfamiliar names, right? Now teacher को इसमें थोड़ा सा she felt unfortunate thing happened in her room number in her class, or you can say in room number 13, and she is no doubt she is sad, but she was not angry. Rather she gave instructions to be aware of such things. मतलब when you have to speak, just speak thoughtfully. So she wished that whatever had happened, it was all because of the thoughtlessness, or unintentionally, right? So now let us continue. Now once on Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy.
They were writing a letter to Wanda Pentrosky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. So now what they are doing, they are writing a friendly letter. मतलब instead of regretting what they had done, वो सिर्फ एक friendly letter लिख रहे हैं. They told her how pretty her drawings were. They appreciated the drawings and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new team. Okay, so सिर्फ फ्रेंडली लेटर में वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया या हम सॉरी फील कर रहे हैं, नहीं. हुँ? बस सिर्फ उससे पूछ रहे हैं कि यार तुम जहाँ गई हो वहाँ न्यू टीचर कैसी है. तो इट्स अ फ्रेंडली लेटर. दे हैड meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter. वो चाहते थे, they were sorry. It means Peggy was also there to it means Peggy was also feeling sorry, right? ओके द काइंड दे. नाउ क्या हुआ आखिर में, मैंने सोचा तो था कि हम सॉरी कहेंगे, बट टू से सॉरी इज नॉट दैट इजी एज वी थिंक. But it ended up with just writing a friendly letter and they signed it with lots of X of love. Okay. Now they mailed a letter to Bogan's Height writing please forward on the envelope. Envelope में लिख दे जैसे हम करते हैं ना, मैसेजेस फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे भेज दो जी. तो ऐसे ही उनका एड्रेस भले ही उसके पास नहीं था लेकिन उनका नाम लिख करके उन्होंने भेज दिया कि भाई जहां पर भी वो है वहां फॉरवर्ड कर दो. राइट. द डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक. आंसर भले ही नहीं आया था लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया था कि अगर लेटर रिसीव नहीं होगा तो वापस आ जाएगा. तो वापस भी नहीं आया था. तो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट. यहाँ पर उनको ये वाला ये डाउट था कि मे बी वांडा रिसीव्ड इट, तो मिल गया होगा उसे लेटर. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. कभी या वो शायद इतनी हर्ट है, इतनी गुस्से में है कि उसने आंसर नहीं दिया. सकता है, मे बी यू कुड नॉट ब्लेम हर. लेकिन मैं कहता है कि नहीं, हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि भैया उसके साथ तो हुआ ही गलत है. नाउ दे आर फीलिंग सॉरी, तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि हमने उसके साथ गलत किया है, तो उसका गुस्सा करना तो बनता है. वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर. Peggy had fun, begun to forget the whole business. Peggy तो उसे भूलने भी लग गई थी. ठीक है. And Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda. लेकिन उसकी ना साइकोलॉजी समझो कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज थी कि आई कुड स्टॉप ऑल दिस थिंग. मैं रोक सकती थी ऐसी चीजें. तो वो चीज उसके दिमाग में चली गई, तो उसने क्या करा, रात को नींद में वो कई बार स्पीचेस देती थी कि वांडा को डिफेंड करती हुई. दैट उसको ऐसा लगता था कि सपने में वो देखती थी कि मैं वांडा को डिफेंड कर रही हूँ फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स. बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं और वहां पर ये स्पीच दे रही है कि हु वर ट्राइंग टू टीज हर, जो लड़कियां उसको टीज करने की कोशिश कर रही है. हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग. तो जैसे ही वो आंसर करने से पहले अपने पतले पतले लिप्स को वो टाइट करती थी और फिर आंसर देती थी, मेडी वुड क्राई आउट. बट शी इज whatever is happening here is happening in her sleep. तो ये ना अगर मान लीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन आता है, then you have to be alert. ये सारी चीजें हुई नहीं है, but it's all the dreams of Maddie which she used to see, right? Stop. Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. तो उसको वो एक अच्छा सा भाषण देती थी, स्टॉप करती थी और इस तरह से उनको वो शर्मिंदा करती थी. एवरीबडी वुड फील, सबको सब शर्म आ जाती थी कि गलत कर. नाउ इट वाज क्रिसमस एंड देयर वाज स्नो ऑन द रोड, ऑन द ग्राउंड. सारी जगह में स्नो है. ठीक है. क्रिसमस कब होता है? दिसंबर में. और दिसंबर में क्या होती है? ठंड. तो बर्फ पड़ती है, तो सारे में बर्फ है. क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम. क्लासरूम में भी करते हैं जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे जो भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं तो क्लासरूम्स को थोड़ा सजा देते हैं. तो इस तरह से वहाँ पे क्रिसमस में जब होता है तो क्रिसमस में हम जैसे हम अपने स्कूल में करते हैं ऐसे ही यहाँ पे भी ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल. अब वहाँ क्या होती है, क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, राइट. सो ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, टीचर शोड अ क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग. तो टीचर शोड द क्लास अ लेटर, एक लेटर शी हैड रिसीव्ड, एक लेटर जो उसने रिसीव किया है, वो मिला है. तो उन्होंने जो सुबह वो लेटर मिला वो उसने बच्चों को
दिखाने के लिए वो लेकर आई। You remember Vanta Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Do you remember? क्या तुम्हें याद है? Well, she has written me and I'm glad to know where she lives because now I can send her medal. तो बहुत खुश है टीचर कि अब मुझे उसका एड्रेस मिल गया है, कि जहाँ से लेटर आया वहां से उसका एड्रेस भी आ गया। तो अब मैं उसको उसका मेडल दे सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। मैं आपको वो लेटर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सैट अप विद अ सडन इंटरेस्ट। उनको इंटरेस्ट आया, भाई क्या लिखा है इसने। एंड लिसन इंटेंटली, बहुत ध्यान से सुनने लगे। डियर मिस मैसन। तो उसने लेटर किसको लिखा है? टीचर को। हाउ आर यू एंड रूम 13? मैंने कहा ना वहां पे क्लास के हिसाब से नहीं, रूम के हिसाब से आइडेंटिफाई होता है। तो रूम 13 कैसा है? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस I have 100 new ones all lined up in my how uh, how good girl is she? क्यों कह रही है सारे ड्रेसेस आप ले लो, और क्योंकि मेरे पास तो और 100 आ गए, इट मीन्स कि उसने और 100 ड्रेसेस ड्रॉ कर ली हैं। आई वुड लाइक द गर्ल पेगी। उसने किसका नाम लिया? पेगी का। टू हैव द ड्रॉइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस। तो जो ग्रीन ड्रेस है वो पेगी लेगी विद रेड ट्रिमिंग्स, पेगी के लिए है। एंड अ फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन। बाकी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उसने पेगी और मैडी का नाम लिखा है। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। दिस इज हाउ शी अप्रिशिएटेड हर टीचर। ठीक है, कि भाई जो यहाँ की जो नई टीचर है वो आपके जैसी नहीं। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। ओके, नाउ दिस इज द लेटर sent by Wanda Pentrosky to her teacher Miss Mass. On the way home from school, Maddie and Peggy held her drawings very carefully. और ध्यान से वो अपनी drawings लेकर गए. All the houses had wreaths and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were staked, and in the window, candy, peppermint sticks, and knock, uh, cornucopia of shiny, transparent paper was strung. See, decorative कंटेनर्स, राइट। तो जैसे जैसे यहाँ मिलते हैं ना फूल और फल और इन सब की टोकरियां सजी हुई, तो ऐसे क्रिसमस में बहुत सारी आपकी बिस्किट्स और स्नैक्स और ब्रेड और ये सब चीजों की मिलते हैं। तो इस तरह से वो सारी चीजें सब कुछ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर मतलब और चमकीले हुए पेपर में सारे वो रैप्ड करके सब रखे हुए। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस। तो क्रिसमस की जैसी स्मेल आ रही है। मतलब क्रिसमस में जो जो चीजें बनती है वो सारी चीजों की स्मेल है। केक बनता है स्पेशली तो। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। खूब सारे कलर वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बॉय सेड पेगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। तो दिस शोज मतलब क्या, किससे पता चला कि शी लाइक्स अस? कैसे कह रही है वो? क्योंकि उसने उनका नाम लेकर के उन्हें वो ड्राइंग्स दी स्पेशली। तो वो कहती है कि नहीं, इसका मतलब शी रियली लाइक्स अस। इट शोज शी गॉट आर लेटर। और इससे पता चला कि लेटर मिला है। सी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ कैन यू से दैट वांडा पेट्रोस्की गॉट द लेटर? तो वहां पर यू हैव टू से कि उसने रिप्लाई किया था मिस मैसन को, एंड स्पेशली शी मेंशन्ड द नेम्स ऑफ पेगी एंड मेडी, राइट। नाउ दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑलराइट। मतलब नो वे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, एवरीथिंग इज ऑलराइट, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंड दैट्स दैट। आई होप सो। मेडी सैडली, मेडी अभी भी सैड है, ठीक है। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped polished girl again. उसको क्यों दुख है? क्योंकि वो उसको कभी देख नहीं पाएगी, and could not ever really make things right between them. रियल रियलिटी में हम उसको वो कभी करेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बहुत कुछ चाहती थी कि वो ज्यादा रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन उसे ज्यादा है मेडी को, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी तो वांडा जैसी ही हूँ, राइट। तो उस वो गिल्ट उसको ज्यादा है कि मैं उसे रोक भी सकती थी, पेगी तो कर रही थी, उसी की फ्रेंड थी, शी कुड से एटलीस्ट शी कुड एक्सप्लेन द फीलिंग्स, कि क्या फीलिंग्स उसकी हो सकती है वांडा की, तो वो एक बार तो बोलती। तो इसका उसे गिल्ट है। Now she went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wall. एक torn place थी, जगह में थोड़ा सा टूटी हुई जगह या खराब सी जगह, वहां पर उसने वॉलपेपर जहां से फट रहा था वहां पर उसने क्या किया, अपने बेडरूम में उसको लगा दिया। द शेबी रूम बिकेम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। जो सुंदर कलर वो जो पिक्चर लगी उससे उसका शैबी सा रूम था जो गंदा सा दिख रहा था, वो भी खिल उठा।
Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. लेकिन जो भी है वो खड़ी होती, उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वांडा तो उसके लिए अच्छी थी. Okay. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. आंखों से आंसू आ गए and she was continuously looking at the picture. Then hastily she rubbed her eyes. उसने एकदम से अपनी आंखें रब करी and studied it intently. Studied it. It means उसने पिक्चर को ध्यान से देखा. It means पिक्चर जो ड्राइंग उसने बना रखी थी, ड्राइंग को. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and the head of the drawing. Scarcely मतलब छोड़ देते हैं क्या, बिल्कुल बहुत कम, बहुत कम. उसने उसने फेस को तो देखा ही नहीं, नोटिस ही नहीं किया. बट इट लुक्ड लाइक हर. लेकिन इट लुक्ड लाइक हर यानी वो उसके जैसी ही लग रही थी. कौन? जो फेस था उस पिक्चर में, जो फेस था वो उसके जैसा लग रहा था. मेडी. आई रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ. के अपने मुंह जैसा था. Why it really looked like her own self. Wanda had really drawn this for her. तब उसने ये रियलाइज किया कि वांडा ने ये रियल में उसके लिए बनाया है. Excitedly, she ran over to Peggy's. वो पैगी के घर गई. Peg said, "Let me see your picture." "What's the matter?" asked Peggy. "Picture? क्या हुआ? क्या हुआ?" उसने कहा ना, पिक्चर दिखाओ अपनी. As she clattered up to her room, where Wanda's drawing was lying face down on the bed. उल्टा करके उसकी पिक्चर वहां बेड में उसने रखी हुई थी. Maddie carefully raised it. बहुत ध्यान से उसने उठाया है. Look, she drew you. That's you, she exclaimed. देखो ये तुम हो. And the head and face of this picture did look like Peggy. Good Peggy जैसी थी. What did I say? Said Peggy. She must have really liked us anyway. देखा, वो जरूर हमें पसंद करती. Yes, she must have, agreed Maddie, and she blinked away the tears. Then came every time she thought of Wanda standing alone in a sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, "Sure, 100 of them, I all lined up." तो उसके दिमाग उसको ख्याल आ गया कि कैसे लड़की वो थी, खड़ी होती थी, अकेली होती थी सनी सन के बीच में, और वो सारे लोग उसके आसपास होते थे, हंसते थे उस पे, और वो कैसे बोलती थी, श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप. जब बार उससे पूछा जाता था तो वो ऐसे बोलती. राइट. तो दिमाग में वो सारी पिक्चर आ गई. तो दैट्स द एंड ऑफ द लेसन. द loveliest lesson of this lesson, this book. I really like this because तीन लड़कियां हैं, तीनों का डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर है. तो जब कैरेक्टर स्केच आएगा देन यू हैव टू राइट ऑल द इंसिडेंट्स यू नो अबाउट द गर्ल रिलेटेडली. ओके, सो तीनों के कैरेक्टर स्केच में जब वांडा का बोलोगे तो पेगी और मेडी भी आपको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना है. जब पेगी बोल रहे हो तो वांडा और मेडी भी आएगा. सो ओवरऑल ये है कि सारे इंटरलिंक्ड है. So what did the girls write to Wanda? You know it very well. Now, did they get a reply? Who was more anxious for a reply, Peggy or Maddie? No doubt, Maddie was more anxious. How do you know? Because she was more excited and she was more thinking about her. How did the girls know that Wanda liked them even though they had teased her? Because Wanda, if no doubt, Wanda liked both the girls because she mentioned especially Peggy and Maddie in her letter to Miss Messer. Right? Okay, now that's all for today. Thank you very much.